اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شفا، کیا حال ہے آپ کے؟ اچھا، کون سے؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، باقی کون ہے سنڈے کلاس سے؟ رضوانہ، آپ سنڈے کلاس سے ہیں؟ نہیں، میں ایکچولی بدھ والے دن کلاس سے ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں. میں نے خود آپ لوگوں کو ابھی میسج کیا. ٹھیک ہے، تو ہم شفا سے یہ سنڈے کلاس ہیں تو ہم ان کا شروع کرتے ہیں، ان سے پڑھانا، اور میں شیئر کرتی ہوں اور ہم پریکٹس کرتے ہوئے پچھلے لیسن کی آگے جائیں گے. اچھا، شفا کی ہیلپ کے لیے میں پہلے کسی اور سے پڑھوا لوں، ابھی میں شیئر بھی کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بک. یہ والا لیسن نمبر 5 ہے آپ کا. تو پہلے کوئی اور پڑھ لیں تاکہ پھر شفا کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی نا. شفا آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 2nd نمبر پہ آپ سنیے غور سے اور پھر آپ پڑھ لیجیے گا. آپ کا فرسٹ ٹائم ہے نا یہ کلاس، لیسن 5 ہے نا؟ چلیے پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لے. رضوانہ آپ آئیں. رضوانہ آپ نہیں آ رہی؟ اچھا سوری، ایکچولی نہیں وعلیکم. میں آ رہی. ایکچولی میں نے آج فون سے لاگ ان کیا ہے، کمپیوٹر سے نہیں. سو اچھا آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اوکے، نو پرابلم. سعید الدرس الخامس، الدرس الخامس لیسن 5. سعید کتاب محمد هذا یاسر. کیا یہ کتاب، should I say in English or In any language, don't worry. anything؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ لا ھذا کتاب حامد. یہ حامد کی کتاب نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے. تو کوشچن کیا تھا؟ کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں، یہ کتاب حامد کی ہے. اچھا، اس میں سب کے میننگ آپ کو آنے چاہیے. آ کا میننگ آنا چاہیے کتاب محمد ھذا، یہ تینوں ورڈ ایک ساتھ آئیں گے. کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ او یاسر یا اے یاسر. اردو میں کہیں گے تو اے یاسر، انگلش میں کہیں گے تو او یاسر. ٹھیک ہے. اچھا، لا ھذا کتاب حامد، تو اس میں ھذا کتاب حامد ایک ساتھ پڑھا جائے گا. نہیں، یہ کتاب حامد کی ہے. چلیے آگے پڑھیے. سعید این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا تحت المکتب ہناکا، وہ میز کے نیچے ہے وہاں. وہ وہاں میز کے نیچے. جب اردو میں کہیں گے نا تو ہر چیز کو اپنے پراپر جگہ پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں ٹیبل کے میز کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، میز کے نیچے. تحت المکتبی، ہناکا، ہناکا کا میننگ ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے، وہاں. اور صرف ہناکا کا مطلب ہوتا ہے اگر کا نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں. صحیح ہے، ہونا یعنی یہاں. یہاں. تو صرف ہونا ہوگا تو یہاں ہو جائے گا، اور ہناکا ہوگا تو دور ہے نا، تھوڑے فاصلے پہ ہے نا، تو وہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہناکا. آگے. سعید این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی مکتب المدرس، وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے. اوپر، ہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب اوپر یا پر یا آن. ٹھیک ہے. اچھا آگے. سعید قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ قلم من، whose pen is this.
یہ قلم کس کا ہے, هذا من this, قلم من, یہ قلم, ٹھیک ہے نا, کس کا ہے, کس کا ہے. علی هذا قلم المدرس, یہ ٹیچر کا قلم ہے. ٹیچر کا قلم ہے, صحیح. سعید این حقیبۃ المدرس, ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. علی ہی تحت المکتبی, وہ میز کے نیچے ہے. وہ میز کے نیچے ہے. اگر انگلش میں کریں گے تو اس کا میننگ اب اٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. It's under the table. It's under the table. It کیوں ہوگا, کیونکہ یہ بے جان چیز ہے نا. بے جان چیز ہے, exactly. ہاں, حقیبہ جو ہے بے جان چیز ہے, تو اٹ جو ہے ہیا اس کی طرف جا رہا ہے, اشارہ کرے. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون آئے گا, آئیں گی آپ ابھی, شفا آپ آئیں گی. کون جلدی سے آنا چاہتا ہے اور اچھا پڑھنا چاہتا ہے. سنڈے کے اسٹوڈنٹ میں سے آئیں, پہلے ہینڈ ریز کریں سنڈے کے اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. سنڈے کے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیں گی آپ؟ میں نے پہلی بار ابھی جوائن کیا ہے, اور مجھے تھوڑی آتی ہے. میں جہاں سے کلاس لے رہی تھی نا, وہ پیڈ کلاسز ہیں, مطلب فی پے کرنی ہوتی ہے. آپ اپنا نام بتا دیں مجھے. میرا نام روبینہ اشرف. روبینہ اشرف, اچھا جی. آپ نے مجھے میسج تو نہیں کیا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ جی میں نے ہی کیا تھا, آپ نے لنک دیا تبھی میں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں نے آپ کو جواب بھی دیا تھا نا اس کا. چلیے جی. اچھا, روبینہ اشرف ہیں, چلیے پڑھیے. سعید, یہاں سے پڑھ لیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں کتنا آتا ہے آپ کو. الدرس الخامس, سعید کتاب محمد هذا یا یاسر, لا هذا کتاب حامد. کتاب حامد, ہاں یہ ایک دمہ ہے, اس کو ایک ہی دمہ پڑھنا ہے, یہاں پر بھی ایک ہی دمہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کتابو حامدن, کتابو محمدن. جب تک آپ کتابو نہیں کہیں گی نا, اس کا میننگ نہیں بنے گا محمد کی کتاب, ٹھیک ہے نا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا, پوسٹیفی ایس ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں حامد's پین, یا پھر آپ کہتے ہیں خالد's بک, محمد's بک, تو ایس لگاتے ہیں نا بیچ میں, تو یہ دمہ وہی کام کر رہا ہے, وہ دمہ یہ پوسٹیفی ایس کا کام کر رہا ہے. کتابو محمدن, محمد's بک. کتابو حامدن, حامد کی کتاب, ٹھیک ہے. اردو میں کا کی کے کا ترجمہ ہوگا, انگلش میں ایس لگائیں گے. جس کو جس میں ترجمہ آتا ہے, آپ اس کا ٹرانسلیشن کیجیے. سعید کیا کہہ رہے ہیں؟ سعید کہہ رہے ہیں یہ کتاب یاسر کی ہے. نہیں, یہ کتاب محمد کی ہے. یاسر سے پوچھ رہے ہیں. یاسر سے, او یاسر, اے یاسر, ٹھیک ہے نا. یا کا مطلب یا اللہ کہتے ہیں نا, تو اے اللہ ہوتا ہے نا میننگ, ٹھیک ہے. تو یہ وہی یا اللہ والا, تو اے اللہ اور اے یاسر یہاں پہ ہے. اچھا, یہاں پر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا. آ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کیا. آ کا مطلب کیا. کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر, کیا یہ کتاب محمد کی ہے. حاضہ کا مطلب دس, ٹھیک ہے, حاضہ کا مطلب دس. کیا یہ کتاب محمد کی ہے او یاسر یا اے یاسر. آگے کیا ہے, یاسر کیا جواب دے رہے ہیں؟ یاسر, لا ھذا کتاب حامد, نہیں یہ کتاب, نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی شاید. جی دوبارہ ٹرانسلیشن دوبارہ کرنا. نہیں یہ کتاب, نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. حامد کی ہے. آپ کی آواز کٹ گئی تھی, اس لیے میں نے دوبارہ کروایا, ٹھیک ہے. چلیے ابھی پڑھیے اس کو. سعید این کتاب محمد, محمد کی کتاب کہاں ہے. یاسر ہوا تحت المکتبی ہناکا, وہ نیچے ہے تحت المکتبی,
हाँ, टेबल के नीचे है, टेबल के मेज के नीचे, मेज भी कह सकते हैं, डेस्क भी कह सकते हैं, ठीक है ना, के नीचे है। हाँ, वहाँ। हुनाका का क्या मतलब है? वहाँ, हुनाका वहाँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में सब पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पक्का हो जाएगा, सही है। चलिए, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं, आगे बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। चलिए पढ़िए आगे। सईदुन, सईदुन ऐना दफ्तरु अम्मारी, अम्मारिन क्या अम्मारी, अम्मारिन, अम्मारिन, जज़ाकल्लाह। असीरु हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी। ऐना दफ्तरु अम्मारिन, ऐना का मीनिंग क्या होता है? कहाँ, ऐना का कहाँ, कहाँ, दफ्तरु में अम्मारिन, तो अम्मार की कॉपी, दफ्तर ऑफिस नहीं होता, दफ्तर कॉपी होता है उर्दू में। अम्मार की कॉपी कहाँ है, ठीक है ना, अम्मार की कॉपी, दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कॉपी या कॉपी, ठीक है, कहाँ है। और है के लिए यहाँ कोई वर्ड नहीं है, वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। ऐना का मतलब कहाँ। मौलिमा, जी जी, कॉपी के लिए हमें तो कुर्रासा पढ़ाया गया था। कुरासा, हाँ, वो रजिस्टर होता है, बड़ा वाला, वो बड़ा बड़ा रजिस्टर होता है। ये दफ्तर कॉपी होती है, छोटी कॉपी होती है, नोटबुक होती है ना, जिसमें नोट्स लिखते हैं। जज़ाकिल्लाह मौलिमा। ठीक है, दोनों में फर्क है। ये आपकी कॉपी है, छोटी वाली नोटबुक है, और वो जो होता है वो बड़ा रजिस्टर होता है, जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं। ठीक है, जज़ाकिल्लाह। अच्छा, तो ये क्या हो गया? अम्मार की कॉपी कहाँ है? अम्मार की कॉपी कहाँ? या हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी या मुदर्रिसी? मुदर्रिसी है, ठीक है, मुदर्रिसी, जज़ाकिल्लाह। वो मदरसे की डेस्क पर है। मदरसा नहीं है, ये टीचर है, मुदर्रिस है ये। मुदर्रिस टीचर होता है ना। मदरसा में देखिए, यहाँ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं इस पे। मदरसा में क्या होता है? मदरसा में आपका गोलता आता है, ये होता है मदरसा, और ये इसके आगे गोलता भी आती है। ये क्या है? ये स्कूल है। मदरसा बोलते हैं ना, पाकिस्तान में मदरसे बहुत है ना, मदरसा। तो ये आपका मदरसा है, और ये मुदर्रिस है। मुदर्रिस जो होता है ये टीचर होता है, दोनों में फर्क करना, ठीक है। तो हुआ यानी वो कहाँ पर है? वो टीचर की टेबल के नीचे है, ऊपर है, सॉरी, अला है ना, तो अला का मीनिंग क्या? ऊपर है। मक्तबिल मुदर्रिसी, टीचर के टेबल के ऊपर है। आगे करें। सईदुन, आगे पढ़िए। सईदुन कलमु मन हादा या अली, या अली यू, या अली यू, अलीयुन, जज़ाकिल्लाह। अली यून नहीं है, अली यू है। वैसे तो अली यून नहीं होता है, देखिए यहाँ पे अली यून लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अली यून है, बट जब या लग जाता है तो फिर हम अली यून नहीं कहते, फिर हम या अली कहते हैं, सही है, या अली यू कहते हैं, एक पेश हो जाता है। जैसे कि किताब बुन होता है ना, तो किताब बुन पे जब अलिफ लाम लगाते हैं तो क्या होता है? इसके पर अगर मैं किताब उन पे अलिफ लाम लगा दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अल किताब बोल ही रहेगा, एक पेश आ जाएगी ना अभी, है ना, एक पेश रिमूव कर देंगे, अलिफ लाम लगेगा तो एक पेश हो जाएगी, अल किताबू। अब अल किताबुन नहीं कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे अली युन होता है, लेकिन जब या लग जाता है पीछे तो या अली यू हो जाता है। अच्छा, अब अली युन क्या कह रहे हैं? कलम मन हाजा, जी, जज़ाकिल्लाह। किसका कलम है ये? ए अली, ठीक है ना। आगे पढ़िए। अली युन, अलीयुन हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये टीचर का कलम, ये टीचर का कलम है। चलिए आखिरी लाइन। सईदुन ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, यानी कि टीचर का बैग कहाँ है? हकीबतुल मुदर्रिसी, टीचर का बैग कहाँ है?
अब वो बता रहा है अली कि वो कहाँ है. अलियुन हिया तहतल मक्तबी, वो डेस्क टेबल के नीचे है. टेबल के नीचे है. मुश्किल है कि आसान है? कैसा लगा आपको पढ़ के फर्स्ट टाइम? सही है, बस थोड़ा जबरदस्त पेश मुश्किल होते हैं मेरे लिए. नहीं, कोई मुश्किल नहीं होते. आप सेल फोन पे है ना, जब आप लैपटॉप पे होंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा. और वैसे भी आप उसको थोड़ा सा ना फॉन्ट को बड़ा कर लिया करें, अपने स्क्रीन को टच करके थोड़ा सा बड़ा कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है. यहाँ पे या अली यू है, ठीक है. और जेर जबर पेश में कोई मसला नहीं है, बस आप मुदर्रिस और मदरसा में थोड़ा सा वो आप डिफरेंस कर लें, ठीक है. बाकी तो ठीक था माशाल्लाह, ट्रांसलेशन भी सही था. फर्स्ट टाइम अच्छी ट्राई थी आपकी, ठीक है. अल्लाह मज़िद फज़िद इंशाल्लाह, ठीक है. नेक्स्ट आ जाए, कौन पढ़ेगा? वही है कि आप संडे की क्लास लेंगी ना? डेली होती है क्लासेस? डेली नहीं होती, वेडनेसडे को होती है उर्दू क्लास, और आज हुई है संडे को होती है. तो प्रैक्टिस के लिए आप दोनों क्लासेस में आ सकती, कोई मुश्किल नहीं है. वेडनेसडे को भी आ सकती है. ओके, वही है. ओके सिस्टर, नेक्स्ट कौन आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व जी हम रहमतुल्लाह. फौजिया हैं. फौजिया, ठीक है. वेडनेसडे के हैं मैम हम. आप संडे क्लास से हैं फौजिया? वेडनेसडे है मैम, मिस हो गई थी क्लास तो इसमें फिर ज्वाइन करें. अच्छा ठीक है, मिस हो जाए तो जरूर आके ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है. और कोशिश करें अपनी क्लास भी अटेंड करने की. लेकिन अगर मिस हो जाती है और दोनों भी मिस हो जाएं तो फिर रिकॉर्डिंग को सुने, लेकिन स्किप ना करें कुछ भी लेसन. एक लेसन भी स्किप कर दिया ना, क्योंकि हर लेसन में बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको सीखने होते हैं. जैसे अभी देखें, या से रुन आता था पहले, अब या से रू हो गया, ठीक है ना. इसी तरह से आप देखें तो किताबु मोहम्मदिन, किताबु हामिदिन, ये पूरा एक क्या बन रहा है? फ्रेज बन रहा है, मुरक्कब बन रहा है दो अल्फाज को मिला के. तो जब ये दो अल्फाज मिलते हैं किताबु हामिदिन, तो फिर इसका मीनिंग होता है हामिद की किताब, मोहम्मद की किताब. जैसे मैं कहती हूँ, हम कहते हैं ना कि बैतुल्लाही. अब बैतुल्लाही का क्या मीनिंग होता है? बैतुल्लाही, दो लफ्ज है ना, दोनों को मिला दिया है. एक बैतुन है और एक अल्लाह का घर. अल्लाह का घर. तो का आ गया ना ट्रांसलेशन में, अल्लाह's हाउस है ना, अल्लाह's हाउस. तो वो जो इंग्लिश में एस लगाते हैं वो उर्दू में का की होता है, ठीक है. बैतुल्लाही. अभी जैसे हम बोलते हैं किताबुल्लाही, किताबुल्लाह. वैसे तो किताबुन होता है ना, किताबुन होता है, लेकिन अभी क्या है? किताबू है, क्योंकि हम अगर तनवीन डालेंगे तो फिर हम जोड़ नहीं सकेंगे ना. तनवीन के साथ आगे जोड़ नहीं सकते, तो हम एक पेश बना देते हैं, किताबुल्लाही. अभी इसकी फॉर्मेशन देखें जरा. इस पे एक दम्मा आ रहा है और इस पे एक कसरा आ रहा है. कसरा ही आएगा, ठीक है ना, कसरा ही आएगा. किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब. रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही. अब क्या होगा? इसका क्या मीनिंग होगा? रसूल की किताब. रसूल की किताब, रसूलुल्लाह. अच्छा, इसका ट्रांसलेशन जो है ना वो उल्टा करते हैं. अल्लाह के रसूल है जी. अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल जो भी बोलना है. तो का की के तर्जुमा लगाना है. किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, अल्लाह के रसूल. तो का की के तीनों तर्जुमे. लेकिन इसकी जो बनावट है ना वो यही होना चाहिए कि पहले वाले पे एक ही दम्मा होना चाहिए, एक ही हरकत होनी चाहिए. तनवीन नहीं होनी चाहिए और अलिफ लाम भी नहीं होना चाहिए पीछे. अलिफ लाम भी नहीं होगा, सिर्फ एक दम्मा होगा. और इसके ऊपर क्या होगा? अगर इसके ऊपर जो है तनवीन भी आ सकती है और एक दम्मा भी आ सकता है. तनवीन भी आ सकती है इसके ऊपर. अगर मैं कहती हूँ किताबु यासिरिन, तो तनवीन आ गई ना, यासिरिन. ये बहुत जरूरी है, इसको समझना थोड़ा. जिसको समझ आ रही है जरूर समझे. अच्छा देखें, अब यहाँ पे यानी ये वाला जो वर्ड है जो बाद में आ रहा है, दो वर्ड है ना, एक बैत है एक अल्लाह है, ठीक है. अच्छा, ये वाला जो सेकंड वाला वर्ड है इसके ऊपर अलिफ लाम भी आ सकता है, ठीक है, और तनवीन भी, यानी अलिफ लाम के बगैर भी आ सकता है.
جب الف لام کے ساتھ آئے گا تو ایک کسرہ آئے گا، اور جب بغیر الف لام کے آئے گا تو دو کسرہ آئیں گے، لیکن آئیں گے کسرہ ہی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتابو یاسرن یا یاسرن، یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کتابو یاسرن، اس کو آپ نے زیر ہی دینا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا، کتابو محمدن، تو یہاں پر ایک ہی پیش آئے گا، اور یہاں پہ دو زیر بھی آ سکتے ہیں، اگر الف لام لگ جائے تو ایک زیر بھی آ سکتا ہے. یہاں پر الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تو یہ اس کا رول ہے، اس کا لا ہے یہ، اور اسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. چلیے اب آپ پڑھیے. سعیدن. انشاءاللہ. سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر. لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ یاسرن آ رہا ہے، یہاں پہ یاسرو آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے یاسرو کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ رن کیوں نہیں آ رہا؟ پیچھے یا لگ گیا ہے نا. اگر جی یا جی پیچھے یا لگ جائے گا تو پھر یا سے رن نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں جی، گے؟ صرف ایک دم دمار رہے گا، ایک ہی ہاں دمار رہے گا. دیکھیں ویسے کیا ہوتا ہے، محمد دون ہوتا ہے نا، لیکن جب یا لگائیں گے جی. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یا محمد یا محمد. دو ہو جائے گا. اور عورتوں کے نام پہ تو ویسے ہی ایک پیش لگی ہوتی ہے. عورتوں کے جی یا نام پہ تو محمد. ہاں، اگر عورتوں کے نام پہ تو ویسی ایک پیش لگی ہوتی ہے نا. تو اگر زینب کو پکارنا ہے تو یا زینبو، ٹھیک ہے نا، وہ زینبو وہ ویسے ہی رہے گا، کیونکہ عورتوں کے نام کے اوپر پہلی ایک پیش ہوتی ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مردوں کے نام پہ دو پیش ہوگی تو یا لگنے سے ایک پیش ہو جائے گی، یا محمد. یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. اچھا اب پڑھیے آگے. یاسر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. اس کو دوبارہ پڑھیں. کتابو، صریح. اس کو پڑھیں دوبارہ. لا ھذا کتاب حامد. آپ نے یہاں پہ کتابن پڑھا تھا، یہاں جی پہ جی کتابن ہے ہی نہیں، لکھا ہوئے نہیں ہے. اگر آپ نے عادت ڈال لی نا پھر ہمیشہ آپ پڑھیں گی کتابن حامدن. عادت نہیں ڈالنی، کتابو حامدن. اچھا آگے پڑھیے. سعید اینا کتاب محمد. ویریز کہاں، یعنی محمد کی کتاب کہاں پر ہے، کہاں ہے. کہاں ہے؟ یاسر ہوا تحت مکتبی ہناکا. تحت المکتبی تحت المکتبی ہناکا. وہ یعنی ٹیبل کے نیچے ہے. ہاں تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے نا. جی. اللہ ہوتا ہے اوپر، بک اوپر ہو تو اللہ بولتے ہیں، اور نیچے ہو تو تحت بولتے ہیں. تحت المکتبی ہناکا. وہ یعنی ٹیبل کے نیچے ٹیبل کے ہے نیچے ہے. وہاں. جی. وہ ٹیبل کے نیچے ہے. آگے. سعید اینا دفتر عمارین. اینا کے معنی کہاں، دفترو یعنی کتاب، کاپی بولتے نا، کاپی کہتے نا، کاپی. ہاں امار کی کاپی، امار کی کاپی. عمار کی کاپی کہاں ہے. یاسر ہوا علی مکتبی المدرسی. مکتب دیکھیں ایسے نہیں، دیکھیں عربی میں ملا کے پڑھتے ہیں، مکتب المدرسی. ٹھیک ہے نا. مکتب مدرسی. مدر تشدید کے نیچے زیر ہے نا، زیر ہے نا. جی. مدرسی. اچھا ترجمہ کریں. وہ ٹیبل کے اوپر ہے. ٹیچر کے ٹیبل.
مکتب وہ المدرس ٹیچر کے ٹیبل کے اوپر ہے. اوپر ہے. ویری گڈ. سعید قلم من ھذا یا علی. علی من کے میننگ قلم من کس کا پین؟ کس کا یہ پین کس کا ہے؟ ویسے تو من کا مطلب کون ہوتا ہے نا, شروع میں آ جائے تو کون ہوتا ہے, لیکن اب کیا ہوگا, جیسے کہتے ہیں نا whose pen is this, ہے نا, تو من کا مطلب کون, کس کا, سوری کس کا پین ہے یہ پین کس کا ہے؟ او علی, اے علی, اے علی. الا ھذا قلم المدرس, یہ پین. اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تو نہیں لکھا ہوا جی علی, سوری علی ھذا قلم المدرسی, یہ پین استاد کا ہے. اچھا, اب یہ پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اس کا ٹرانسلیشن پہلے لے کے آئے, یہ میں ایرو لگا رہی ہوں, اس کا بعد میں لگا رہی ہوں. اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا نا رسول اللہ, تو آپ رسول اللہ تو نہیں کہتے نا, آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول, ہے نا. تو رسول اللہ آپ ٹرانسلیشن کس کا پہلے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ, ہاں اللہ لکھا ہوا ہے پہلے, تو پہلے آپ اللہ کا ٹرانسلیشن لائیں گے, اردو میں لکھیں گے, اور پھر اس کا عربی میں, اس کا بعد میں لائیں گے. یہ طریقہ ہے اس کا, اللہ کے رسول, ٹھیک ہے نا, یا اللہ کا رسول. ہاں, سو استاد کا پین, یہ استاد کا پین ہے, ٹیچر کا پین ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. آگے سعید این حقیبۃ المدرسی. اینا مین استاد کا بیگ کہاں پر ہے؟ استاد کا بیگ ہے نا, استاد کا پہلے ترجمہ کریں گے, ادھر اردو میں استاد پہلے لکھیں گے, اور پھر کا لکھیں گے, اور پھر بیگ لکھیں گے, ٹھیک ہے نا, الٹا لکھیں گے. اردو میں جب ٹرانسلیشن کریں گے نا آپ, یا انگلش میں کریں گے, تو پھر آپ الٹا لکھیں گے, ٹیچرز پین, ٹھیک ہے نا, دا پین آف ٹیچرز طرح لکھتے ہیں, تو اس طرح ٹرانسلیشن ہوگا. اور آپ اردو میں کریں گے تو الٹ ہوگا. علیٌ ہیا تحت المکتبی. ہیا کے میننگ کیا ہے نا؟ وہ جی, یعنی وہ جو بیگ ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے. وہ ٹیبل کے نیچے, ٹھیک ہے نا. وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پروناؤن ہے نا, یہ ضمیر ہے نا, ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ مؤنث کی ضمیر ہے, تو یہ حقیبہ کی طرف جا رہی ہے. اگر مذکر کی ہوتی تو وہ مذکر کو کہتے ہیں قلم کی طرف جاتی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کا لیسن. ہوا اور ہیا دو میں فرق دونوں میں, ہاں, ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اگر پیچھے کتاب آئے گی نا, تو آگے ہوا کی ضمیر آئے گی. کتاب مذکر ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر آئے گی, ہوا علی المکتبی. لیکن پیچھے اگر حقیبہ ہوگا تو آئے گا ہی یا تحت المکتبی. تو یہ ہوتا ہے, قلم ہوگا تب بھی ہوا یوز ہوگا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مؤنث کے لیے پھر جو ہے ساعتو ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ ہی یا ہوتا ہے. اچھا جی, کسی اور سے پڑھائیں ابھی؟ وہی ہے کہ سسٹر. اچھا, آپ کا نام فوزیہ تھا نا جی؟ اچھا, اب کون آئے گا پڑھے گا؟ جی سسٹر. ہاں جی, جزاک اللہ خیر. اچھا, کون آئے گا ابھی پڑھنے؟ شفا کا ہینڈ. شمشاد پڑھنا چاہ رہی ہیں, چلے پڑھی. نہیں, شفا پڑھنے تو بعد میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. شفا آپ آ جائیں اب جلدی سے, سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. چلیے یہاں سے پڑھیں, کیا ہے یہ؟ الدرس الخامس, لیسن 5. لیسن 5 پڑھتے جائیں. سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر. کیا کتاب محمد کی ہے اے یاسر. ہاں, اے یاسر, ٹھیک ہے. کیا یہ کتاب, حاضہ بھی ہے نا, حاضہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟
दिस है ना ये किताब मोहम्मद की है मोहम्मद की है ए यासिर हाजा ए यासिरुन ला हाजा किताबु हामिदिन नहीं ये किताब हामिद की है हामिद की है। आगे पढ़े। सईदुन अयना किताबु मुहम्मदुन मुहम्मदिन मुहम्मदिन मोहम्मद की किताब कहाँ है। जब तक इसको दिन नहीं बोलेंगी ना, मोहम्मद दिन नहीं बोलेंगी तो इसका मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है। यासिरुन हुआ तहतल मक्तबी हुनाका। चलिए मीनिंग करें। वो टेबल के वो वहाँ टेबल के नीचे है। वो वहाँ टेबल के नीचे मेज के नीचे है। ठीक है आगे। सईदुन अयना दफ्तरुन अम्मारिन दफ्तरुन है या दफ्तरू है। दफ्तरुन दफ्तरू अम्मारिन दफ्तरू अम्मारिन अम्मार की कॉपी कहाँ है। यासिरुन हुआ अलल मक्तबी मुदर्रसी मक्तबिल मुदर्रिसी। मक्तबिल बिल पढ़ना है इसको मिलाना। मक्तबिल मुदर्रसी मैम इसका मीन क्या होगा। हुआ वो। ठीक है। वो टीचर के मेज वो टीचर के मेज पर है। नीचे है। पर है मेज पर है। ऊपर है ना। ऊपर है। अला मतलब ऑन। ठीक है ना। वो टीचर के टेबल या मेज पर है। ठीक है। हुआ का मतलब वो है। ठीक है ना। वो हुआ जो है किधर इशारा कर रही है। हुआ किधर जा रहा है, दफ्तर की तरफ। ठीक है। कॉपी के बारे में पूछ रहे थे ना, कॉपी कहाँ है, तो इट इज ऑन द टीचर्स टेबल। ठीक है। वो टीचर के टेबल के ऊपर है। आगे। सईदुन कलमु मन हाज़ा या अलीयुन। अलीयुन नहीं है बेटा, कलम अलीयु यू है। या अलीयु सही है। या यासिरु या यासिरु या मुहम्मदु या ज़ैनबु। कलम कलम मन का क्या मीनिंग होगा। कलम अली के पास में है। नहीं, कलम मन का मतलब होता है किसका पेन। कलम मन का मतलब होता है whose pen, whose pen is this, पेन है ये किसका, ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, ये पेन किसका है। ए अली। हाँ, कलम मन हाजा, ये पेन किसका है। दोबारा बोलें, कलम मन हाजा। कलम मन हाजा ये पेन किसका है। या अलीयु अली अलीयु अलीयु। ओके। अलीयुन हाजा कलमु मुदर्रसी ये पेन मुदर्रसी। देखिए बेटा, आप इसको ना मुदर्रा नहीं पढ़े, मुदर्री पढ़े, दरी पढ़े, मुदर्री। आप मुदर्रसी पढ़ती है ना, फिर सही नहीं है ये पेन टीचर का है। बिल्कुल बिल्कुल टीचर का है। आगे क्या है। सईदुन आईना हकीबतुल
मुदर्रसी फिर मुदर्रा, मुदर्रिसी हाँ मुदर्रिसी, मुदर्रिसी, ठीक है ना। टीचर का बैग कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अनियुन हिया तहतल मक्तबी वो वहाँ टेबल के नीचे है। वेरी गुड, माशाल्लाह। वहां का लफ्ज यहाँ पे नहीं आया, हुना का नहीं आया यहाँ पे। जब हुना का आएगा ना तो फिर हम बोलेंगे वहां, अभी नहीं आया। सही है। अभी नेक्स्ट करेंगी सिस्टर नौशाबा। कौन थी? शमशाद। आ जाइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमारीन तमारिन अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। आइना किताबु मुहम्मदुन, मुहम्मदिन। दिन, देखिए किताबु मुहम्मदिन, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। ये मुदाफ मुदाफ ले ना, ना ये मुदाफ मुदाफिल है, इसलिए इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। ठीक है। इसको जेर देना है, एक जेर भी आ सकता है, दो जेर भी आ सकता है। दो जेर, एक जेर कब आएगा? जब अलिफ लाम होगा तो एक जेर आएगा। जैसे अल्लाह के नीचे एक जेर आता है हमेशा, है ना, अलिफ लाम आता है ना अल्लाह के नाम पे भी। ये मुदाफ मुदाफिन को उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको उर्दू में मुदाफ मुदाफिल ही बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश अरबी में जो है ना, इंग्लिश में फिर मैं बताऊंगी क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखिए, आप इसका शायद वो पूछना चाह रही हैं कि ये मुदाफ और मुदाफ इलैहि का मतलब क्या है, ये पूछना चाह रही है ना। तो हाँ, तो यहाँ मुदाफ का मतलब होता है निस्बत। निस्बत, ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैहि है। पहली बात तो ये है कि ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैहि है। ठीक है ना, इलैहि है। अच्छा, अब ये मुदाफ ऑलवेज दम्मा पे आते हैं। एक दम्मा पे आएगा, तनवीन पे भी नहीं आएगा और अलिफ लाम पे भी नहीं आएगा। ठीक है, एक दम्मा आएगा सिर्फ उसके बाद। और दूसरा वाला जो है, इस पे अलिफ लाम भी आ सकता है, दो दम्मे भी, दम्मा भी आ सकता, मतलब दम्मा तनवीन भी आ सकती है। सॉरी, दूसरा वाला जो होगा उस पे अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। ठीक है। दूसरे वाले पे अलिफ लाम भी आएगा, तनवीन भी आएगी। इस पे दोनों नहीं आएंगे, अलिफ लाम भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी। ठीक है। इस पे सिर्फ एक दम्मा या एक फतह या एक कसरा आएगा। ठीक है ना। हाँ, बस जो भी आएगा एक ही आएगा। जबर आएगी तब भी एक, जेर आएगी तब भी एक, और पेश आएगी एक ही आएगा। एक ही आएगा। और इसके नीचे दोनों आ सकते हैं, अलिफ लाम भी आ सकते हैं, तनवीन भी आ सकती है। पहली बात। दूसरा, ये मुदाफ कहलाता है और ये वाला मुदाफ इलैहि कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मुदाफ का मतलब होता है निस्बत, निस्बत, ताल्लुक। ठीक है, ताल्लुक। ओके, ताल्लुक। हाँ, जैसे होता है ना कि फलां लड़की की फलां लड़के से निस्बत तय हो गई, होता है ना, कहते हैं ना। तो निस्बत क्या होता है? ताल्लुक होता है ना, यानी उसके साथ की एंगेजमेंट हो गई, ताल्लुक हो गया, एंगेज हो गई वो, है ना। ठीक है। तो निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक। अब ये जो इस किताब को किससे निस्बत है? उसको मोहम्मद से निस्बत है, मोहम्मद से निस्बत है। तो जब हम निस्बत होती है तो फिर हम क्या कहते हैं? मोहम्मद की किताब। ठीक है ना। फर्ज करो कि लड़की है, मोहम्मद की लड़की है, तो फिर हम क्या कहेंगे? बिन्तु मोहम्मद, मोहम्मद। ठीक है, बिन्तु नहीं कहेंगे, बिन्तु मोहम्मद। तो अब ये बिन्तु जो लड़की है, जो बेटी है, इसको किससे निस्बत है? मोहम्मद से निस्बत है। मोहम्मद डॉटर, वो जो इंग्लिश में एस लगाते हैं ना, है ना, हामिद्स पेन, या ऐसा भी बोल सकते हैं ना, डॉटर ऑफ मोहम्मद। हाँ, द डॉटर ऑफ मोहम्मद भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये आपकी मर्जी है, आप उर्दू में ट्रांसलेशन करें, जो आपको इजी लगता है उसमें करें, उसमें कोई मसला नहीं है। बस आपको बात समझ आनी चाहिए कि इस पे तनवीन भी नहीं आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आएगा, और ये वो जो होगा इस पे दोनों आएंगे, अलिफ लाम भी आएगा, तनवीन भी आएगी। ठीक है। अच्छा जी, कि अब इसको कहते हैं मुरक्कबे इजाफी। दोनों में, ये किताबुन एक वर्ड है और मोहम्मदुन एक वर्ड है। जब दोनों को मिलाएंगे ना तो मुरक्कब बन जाएगा। मुरक्कब किस शक्ल में बनेगा? हाँ, मुरक्कब बन जाएगा। कंपाउंड, मुरक्कब किसको कहते हैं? कंपाउंड को कहते हैं ना।
कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? मुरक्कब होता है ना, जैसे एक दवाई ये वाली दवाई है, मेडिसिन है, और ये एक सिरप ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होता है? मिक्सचर सेंटेंस होता है। हाँ, मिक्सचर बन जाता है ना, दो दवाइयों को मिला के मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर को कंपाउंड कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू। हाँ सही है ना। तो ये किताबुन था। अभी हम आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे यहाँ पे, देखें जैसे ये है ना कि कलमुन एक वर्ड है, कलमुन एक वर्ड है और हामिदुन एक वर्ड है। ये अलग अलग है, बीच में कॉमा डला हुआ है, दोनों अलग अलग वर्ड है, ये अलग है ये। अब जब हम इनको मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, इसको मुदाफ बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से तनवीन खत्म कर देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? हामिदिन। हाँ बस, हाँ कलमु हो जाएगा और फिर हामिदिन हो जाएगा। अब पहले इसका कोई मीनिंग नहीं था, इसका अलग अलग, ये एक कलम एक हामिद है ना, ऐसे ट्रांसलेशन कर रहे थे ना। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हामिद का पेन, द पेन ऑफ हामिद, या हामिद्स पेन, या कलम, हामिद का कलम। उर्दू में करेंगे तो का की के में से कुछ लगाएंगे। अभी आप ये वाला करके देखें, मतलब ये वाला करके देखें, मतलब आप दूसरा वाला इंशाल्लाह। बैतुन अब्बासुन। इसको पढ़े नहीं, इसको ना पढ़े, सिर्फ इसको बना के यहाँ पे लिखते हैं, सही करके लिखते हैं। बैतु अब्बासिन, बैतु अब्बासिन, इसको करें। गुरफतु अलियिन, अलियिन, दो पेश होंगे तो दो जेर, ठीक है सही। नेक्स्ट, दफ्तरु सईदिन, सईदिन। मिंदीलुन यासिरिन, मिंदीलु, लू, ठीक है ना, मिंदीलु यासिरिन। सरीरु खालिदिन, हाँ माइक म्यूट करें, किसका माइक है ये पीछे शोर कर रहा है? अपने माइक को कंट्रोल में रखें, ठीक है। जिसका भी माइक ओपन है उसको बंद करें। कमीसुन अम्मारुन क्या हो जाएगा? कमीसु अम्मारिन। हाँ आगे क्या है? सरीरु खालिदिन, खालिदिन। बस इतनी सी बात है। दो वर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों पे तनवीन है, जब उनको मिलाएंगे तो पहले वाले की तनवीन को खत्म करेंगे और दूसरे वाले को दो पेश को जेर में चेंज कर देंगे। अब इसमें देखिए आप, मकतबुल अल मुदर्रिसु, ये दो लफ्ज हैं, एक बगैर अलिफ लाम के है और एक अलिफ लाम वाला है। इन दोनों को मिलाएं, क्या बन जाएगा? आप लोगों के माइक ना, आपके माइक में शोर आ रहा है सिस्टर? नहीं, किसकी शोर आ रहा है? तो आज़ान नहीं होता है। एक सेकंड देखिए, सब पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा सिस्टर, आप अपना शमशाद माइक अनम्यूट कीजिए अभी। ठीक है। मकतबुल मुदर्रिसी, मकतबुल मुदर्रिसी हो जाएगा। इसका आप तनवीन गिरा देंगे, एक पेश में चेंज कर देंगे और इसके दम्मे को जेर में चेंज कर देंगे। जेर में अब एक दम्मा है तो एक जेर में चेंज करेंगे, दो जेर नहीं लगाने अभी, ठीक है। एक दम्मा होगा तो एक जेर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एक जेर लगा हुआ, एक जेर लगा, और इसको आपने तनवीन का एक दम्मा हटा देना, मकतबुल मुदर्रिस। अब ये वाला करें। नेक्स्ट, मिफ्ताहुल बैती, बैती करेक्ट। मीनिंग आता है मिफ्ताहुल बैती का? की ऑफ द हाउस। मिफ्ताह मींस की ऑफ द, हाँ ओके। पहले आप किससे करेंगे? द की ऑफ कैसे करेंगे आप? मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताह का मतलब की होता है, बैत का मतलब क्या होता है? हाउस होता है। तो कैसे करेंगे इंग्लिश में? हाउस की, नहीं तो द हाउस की, द हाउस की भी कर सकते हैं, लेकिन एस लगाना पड़ेगा, द हाउसेस की हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप करें कि द की ऑफ द हाउस, ऐसा होता है ना? द की ऑफ द हाउस, की ऑफ द हाउस भी कर लें, सिर्फ की ऑफ द हाउस भी कर लें, चलेगा। की ऑफ द हाउस कर लें, ठीक है ना। उर्दू में करेंगी ना तो उलट करेंगी, घर की चाबी, घर की चाबी, घर पहले आएगा, यहाँ पे तर्जमा करेंगी उर्दू में घर, और की चाबी हो जाएगा।
अच्छा आगे पढ़िए. दुकानु दुकानु ताजिरी. दुकानु ताजिरी, पढ़ने का भी ख्याल है. ताजिर मर्चेंट, बिजनेसमैन. ओके. तो क्या करेंगे? शॉप ऑफ मर्चेंट. द शॉप ऑफ मर्चेंट. ठीक है, आगे. द शॉप ऑफ. ओके. बैतुल मुहंदिसी. बैतुल मुहंदिसी. हाउस, द हाउस ऑफ द मुहंदिस इज इंजीनियर है ना? इंजीनियर, बिल्कुल ठीक है. द हाउस ऑफ हाउस ऑफ इंजीनियर. द हाउस ऑफ द इंजीनियर. इस्मुल वलदी. ओके. इस्मुल वलदी. नेम ऑफ द बॉय. हाँ, नेम ऑफ द बॉय या बॉयज नेम भी कह सकती हैं. ओके. ठीक है, दोनों तरह से. किताबुल्लाही. द बुक ऑफ अल्लाह. द बुक ऑफ अल्लाह. Okay. Bintut Tabibi. Okay. Bintul Tabibi. बिन्तुत तबीबी. शमसी है ना? Bintut Tabibi. The daughter of Tabibi means daughter of doctor. okay. Doctor. Okay. Doctor. Daughter of doctor. Okay. Miftahus Sayyarati. The car's key. The car's key. The key of the car. बिल्कुल. The car's key. जब कार लिखेंगे ना आप, तो कार्स के ऊपर एस लगा के आपने एक कॉमा में डालना है. जिन जो इंग्लिश में लिखेंगे ना, सॉरी इसको मैं मिटा के दोबारा लिखती हूँ. कार्स की, कार लिखेंगे और आगे एस लगाएंगे और यहाँ पर एक कॉमा डालेंगे. कार्स की इस तरह लिखें इंग्लिश में, या फिर आप लिखेंगे जब इसको आप दूसरी तरह लिखेंगे तो द कार्स की लिख देंगे ना, द कार्स की लिख देंगे इसको. ठीक है. द की ऑफ कार भी या इसको ऑफ में चेंज कर दें, इसको ऑफ में चेंज कर दें. द की ऑफ कार. ठीक है, सही है. अच्छा, सबसे आसान है उर्दू में करना सबसे ज्यादा आसान है. का की लगाया जान का तो सियारती कार की चाबी. माशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ाती है. चाबी. हाँ, तो हर तरह से पढ़ाती हूँ ना कि जो भी सुनने वाला है उसको समझ आ जाए. ठीक है ना? कार्स की भी हो सकता है, ये भी आसान है. ठीक है ना? द की ऑफ कार भी हो सकता है. और मिफ्ताह उस सियारती, गाड़ी की चाबी. डॉक्टर की बेटी, अल्लाह की किताब, लड़के का नाम. अब यहाँ पे का आएगा, लड़के का नाम. ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर. नेक्स्ट कौन आ रहा है? मुबीना मुझे नजर आ रही है, और शमशाद का हो गया. अच्छा, सब कोशिश करें पढ़ने की. अगर हैंड रेज है, माई कौन है, पैड वाली जो है, आई पैड पे जो है वो आ जाए सिस्टर. पढ़ेंगे. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. तो कौन पढ़ रहा है, नाम बताएं. मुबीना है जी. अब मैंने माइक ऑन की थी, लेट हो गया था. सही, कोई बात नहीं. तो आप इसको पढ़ेंगी. अजय बनी. हाँ जी जी जी. एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जरा ब्रॉड कर ले रही हूँ जी. कोई बात. हाँ जी. बाबुल मुदर्रसती हिमारुर रजुली बैतु हामिदिन. आप कौन सा पढ़? अच्छा, ये है ना, ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं. अच्छा, पता है कौन सा पढ़ना है? यही वाला पढ़ना है. मैं ये करवाती सवालों के जवाब, अगर आप कर सकती हैं तो. मुश्किल नहीं है, करे आप, मैं आपकी हेल्प करूंगी जी. आइना बैतुल मुदर्रसी, ये वाले. बैतुल मुदर्रसी, आइना बैतुल मुदर्रसी हुआ बईदुन. नहीं सिस्टर, आप आगे चली गई हैं बहुत. ठीक, कौन सा बोलिए ना, मैं नोट कर. अच्छा, आप यहाँ से पढ़ी होंगी मेरे ख्याल में. जी 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 जी. बाबुल मुदर्रस जी. ये देखेंगे, मदरसा है, ये मदरसा है. ठीक है ना, मदरसा. तो ये इसको आप करें जरा, इस पे क्या लगाएंगी और इस पे क्या लगाएंगी, इसको जोड़ के लिखें, जोड़ के पढ़ें. बाबुल मदरसती.
बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा, मदरसे का दरवाजा। बाबू हिमार, बाबुल मदरसती, यहाँ पे कसरा लगाएंगे। आगे जी ता के नीचे कसरा लगाएंगे। हिमारुर रजुली, रजुली। आगे रजुली, जी आ गया। बैतु हामिदिन, हामिदी, हामिद का घर, हामिदिन, हामिदिन दिन आएगा जी, क्योंकि हामिदी अलिफ लाम नहीं है ना। हामिदिन, जी जी जी, बैतु हामिदिन, हामिदिन। सय्यारतुल मुदीरी, मुदीर की गाड़ी। मिंदीलु अम्मारिन, मिंदीलु अम्मारिन। इस्मुत तौलिबी, बैतुल्लाही, मीनिंग भी करे ना, मीनिंग करी। मिंदीलु अम्मारिन, जी, मिंदीलुन अम्मारिन, मिंदीलु आएगा ना मैम, मिंदीलु अम्मारिन। इस पे कभी भी गलती नहीं करनी तनवीन डालने की, ठीक है। इस पे एक पेश डालना। मिंदीलु अम्मारिन, इस्मुत तौलिबी, बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, मिन बैतिल मुदर्रिसी, मिन बैतिल मुदर्रिसी, अला मक्तबिल मुदीरी। मुदीरी। आपने यहाँ पे कसरा डाला है ना, क्यों डाला है आपने? कहाँ पे मैम? ये अला मक्तबी, हाँ, ये हुर्फे जार होने की वजह से, हुर्फे जार हाँ, आने की वजह से फी किताबिल्लाही में हाँ, जी मिन आया हुआ है, तो मुदर्रिसी को भी हमने भाई कसरा डाला है। अला आने की वजह से बाद वाले इसम को जो जर देता है, तो मक्तबी अल मुदीरी। आप ये नहीं कह सकते अला मक्तबुल मुदीरी, ये नहीं कह सकते। अला मक्तबिल मुदीरी मिन बैतिल मुदर्रिसी। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ये तो पढ़ने वाले हैं, मैं फिर पढ़ाती हूँ किसी से। अच्छा जी, और कौन करेगा इस एक्सरसाइज को आके? मैम आप करें। कौन है, क्या नाम है? शिफा। अच्छा शिफा, आप करेंगे ये वाली, कर लेंगे? बाबुल मदरसती, हिमारु रजुली, ली। हाँ, आगे। बैती हामिदुन, बैती क्यों लगा रहे हैं? बैतुन हामिदुन, तुन क्यों लगा रहे हैं? बैतु हामिदु, हाँ, हामिदु, हामिदिन, हामिदिन, ठीक है ना। इधर दो जेर आएंगे या एक जेर आएगा, और यहाँ पर पेश आएगी। सही है, चलो। सय्यारतुल मुरीदी, मुरीद नहीं होता, हाँ, मुदीर, मुदीरी, मुदीर कौन होता है? प्रिंसिपल। मुदीरी। सय्यारतुल मुदीर, मीनिंग क्या होगा सय्यारतुल मुदीरी का? सय्यारतुल क्या होता है? गाड़ी। प्रिंसिपल की गाड़ी, प्रिंसिपल की गाड़ी, ठीक है। अच्छा, आगे। अम्मारिन, मिंदीलु अम्मारिन। इसको पढ़िए। इसम क्या होता है? इसम नाउन होता है ना। इसम तालिबु, इसमुत ताले, बू नहीं होगा, बी। इसमुत तालिबी, इसमुत तालिबी, बा के नीचे कसरा लगेगा और यहाँ पर पेश लगेगा, एक पेश। इसमुत तालिबी, दोबारा पढ़े। इसमुत तालिबी, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, तालिब इल्म का नाम। इस्म का मतलब होता है नाम। और ये बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, वेरी गुड। आगे।
من بيت मुदर्रिस, ये इसको थोड़ी प्रैक्टिस करवाएं मुदर्रे की, वरना ये ऐसे ही रट लेगी ज़बानी, इसको याद हो जाएगा, फिर मुदर्रे ही पढ़ती रहेगी। मुदर्रिसी, दोबारा बोलो बच्चे, दोबारा पढ़ो। मिन मुदर्रिसी। ठीक है, आगे। अला मक्तबिल मुदीरी। अला मक्तबिल मुदीरी, यहाँ पर जो कसरा आएगा ना अभी वो अला की वजह से आएगा, अला मक्तबिल मुदीरी। ठीक है, चलिए अभी कोई और पढ़ता है, फिर आप सुनिए गौर से किसे पढ़ रहे हैं। कौसर, आ जाइए, दौड़ के आया करें, अल्लाह ताला खुश होते हैं, दौड़ के आते हैं ऐसे नॉलेज की तरफ। चलिए। बाबुल मदरसती इमाम जुली बैतु हामिदिन सय्यारतुल मुदीरी मिंदीलु अम्मारिन इस्मु तालिबी बैतुल्लाह फी किताबिल्लाह मिन बैतिल मुदर्रिसी अला मक्तबिल मुदीरी। अला मक्तबिल मुदीरी, मीनिंग भी आते हैं ना आपको? जी। अच्छा, कौन पढ़ रहा था? आप जो आईपैड वाली है, फोन वाली, आपका नाम क्या है? आप जो पढ़ रही है? खदीजा है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोग जिन्होंने पढ़ना नहीं है अपने वो हैंड जो है वो डाउन कर लें, जिन्होंने पढ़ना है वो हैंड रेस करें सिर्फ, तो मुझे समझ नहीं आती, फिर मैं कंफ्यूज होती हूँ। तो अब ये हो गया बाबुल मदरसती का मीनिंग क्या होगा? मदरसे का दरवाजा। हाँ, स्कूल का दरवाजा। आगे इमारुर रजुली, आदमी का गधा। हामिद का घर। मुदीर की गाड़ी। मुदीर का उल्टा तर्जमा करेंगे, पहले मुदीर का करेंगे फिर इसका करेंगे। आगे अम्मार की दस्ती, रुमाल। अम्मार की रुमाल। तालिबैन का इस्म, नाम। अल्लाह का घर। अल्लाह की किताब में। अल्लाह की किताब में, ठीक है ना, फी का मतलब में। हाँ, आगे मुदर्रिस के घर में। मुदीर के मकतब। मुदीर के मेज पर। मकतब मेज पर। मुदीर को प्रिंसिपल कह लें, ठीक है, प्रिंसिपल के मेज पर। ठीक है। अच्छा, आप ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगी? आपको इंग्लिश उर्दू लिखनी आती है कि इंग्लिश में लिखेंगी? रोमन इंग्लिश में। रोमन इंग्लिश बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह मज़ीद फज़ीद। नेक्स्ट कौन है? अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर कौन करेगा आके मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी, बाकी लोग म्यूट कीजिए, बाकी लोग म्यूट करें, आवाजें आ रही घरों से। चले, ये जो है आप करिए। अजीब असीलतिल आतियती, अजीबिल अनिल असलियतिल आतियती। सवाल नंबर 1, आइना किताब मुहम्मदिन। ट्रांसलेशन भी करना मैडम? ट्रांसलेशन भी कर लिया, फिर जवाब भी देना है। इसका क्वेश्चन है ना ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइना किताब मुहम्मदिन, इज दिस मुहम्मद्स बुक? नो, मोहम्मद की किताब, किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? आईना का मतलब क्या होता है? कहाँ। आप उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगी इंग्लिश में? उर्दू में, इंग्लिश में, ठीक है। तो आईना का मतलब कहाँ, वेयर, ठीक है ना। वेयर इज मोहम्मद्स बुक, या मोहम्मद की किताब कहाँ है, ठीक है। अब इसका जवाब देना है, तो हम क्या लिखेंगे? किताबु मोहम्मद की जगह पे हम हुआ भी लिख सकते हैं। हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, वो टेबल पर है, मेज पर है। इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल।
آپ اردو میں کریں انگلش میں کریں جیسے مرضی کریں. ہوا اٹ از آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے میز پر ہے. اچھا این کتاب عمار, اس کا کیا میننگ ہوگا؟ Where is Amir's book? عمار's book. ٹھیک ہے نا, عمار کی کتاب کہاں ہے؟ ابھی کیا لکھیں گے؟ ہوا تحت المکتبی. ٹھیک ہے نا, وہ ٹیبل کے نیچے ہے. اس کی تو ٹیبل کے اوپر ہے نا, محمد کی تو اس کی کہاں ہے؟ ٹیبل کے نیچے ہے, تحت المکتبی. سوری. اچھا جی, نمبر 3 کوشچن پڑھیے آپ. أين حقيبة مدرسي. اچھا اس کا میننگ کریں. حقيبة. Where is بیگ. there is a teacher's bag. ٹیچرز بیگ. ویئر از ٹیچرز بیگ. ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ اچھا اب کیا لکھیں گے یہاں پہ؟ ہوا ہی لکھوں یا ہیا لکھوں؟ مدرسی شی ہے. ہاں شی ہے نا. ہاں تو بیگ جو ہے وہ آپ کا مؤنث ہے. بیگ مؤنث, اس میں گول تا لگی ہے تو اس کے لیے ہیا لکھیں گے. ٹھیک ہے ہیا. اب کیا کریں گے؟ این حقیبت المدرسی ہیا تحت وہ بھی ٹیبل کے نیچے ہی ہے نا. ہیا تحتل کر لیں یا تحتل, یہاں پر الف لام نہیں آئے گا. تحت مکتب المدرسی. مکتب المدرسی یوں آئے گا. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں سوالوں کو اپنی کاپی میں ابھی بھی اور ان کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے. ہیا it is under the teacher's table. ٹھیک ہے, it is under the teacher's table. تو اس طرح سے ہو جائے گا. میڈم ہیا اٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاں تو ہیا اور ہوا دونوں اٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب ہوا کا مطلب یہاں پر اٹ ہی ہے. یہ تھوڑی بولیں گے کہ she is یا he is on the table, یہ تھوڑی بولیں گے. یہاں پہ ہوا کا مطلب ہی تھوڑی کریں گے, اس کا میننگ ہی تھوڑی کریں گے, اس کا میننگ اٹ ہی کر رہے ہیں ہم. یہی تو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اٹ از آن دا ٹیبل. اٹ از انڈر دا ٹیبل. جی بولیے. سیکنڈ میں ہوا آیا اور تھرڈ میں ہیا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ مذکر ہے, میسکولین ہے. یہ حقیبہ جو ہے یہ آپ کا مؤنث ہے, فیمینائن ہے. تو اس لیے یہ بھی چینج ہو گیا. پھر فیمینائن کے لیے ہیا کی ضمیر آتی ہے اور میسکولین کے لیے ہوا کی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. لڑکا ہوگا تب بھی ہوا یوز ہوگا, اور لڑکی ہوگی تب بھی ہیا یوز ہوگی. اور اگر کوئی چیز ہے آبجیکٹ ہے وہ مذکر ہے تو ہوا, اور کوئی چیز آبجیکٹ جو ہے مؤنث ہے تو ہیا. صحیح ہے. چلیں آپ ہی کر لیں جو بول رہی تھی. کیا نام تھا آپ کا؟ خدیجہ. آپ کریں گی یہ والی ایکسرسائز؟ ہاں جی بولتے ہیں پہلی بات. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہاں جی, تو پھر ریکارڈنگ میں برا لگتا ہے نا. اچھا ہو جاتا ہے مائک پہ کبھی کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم بول دیتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ ٹائم آپ. میڈم میرا ایک ڈاؤٹ ہے. ہاں جی بولیے. جی مطلب پچھلے لیسنس میں آپ نے حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں کہا تھا. تو ایکچولی میرے 2-3 لیسنس مس ہو گئے تھے, تو میں اس کا ریکارڈنگ سن رہی تھی. تو اس میں مطلب آپ پوچھ رہے کہ حروف شمسی اور قمری کو کس طرح سے مطلب کتنے ہیں, اس کو یاد رکھنے کا کوئی طریقہ بول رہے تھے. کچھ عجب غم ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. میں آپ اردو پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ اردو ایسا اتنا فلوئنٹ نہیں, تھوڑا بہت آتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ لیٹرز تو پڑھ سکتی ہیں نا, الفابیٹس تو پڑھ سکتی ہیں نا, وہ تو مشکل نہیں ہے نا. تو میں وہ جملہ یہاں پہ لکھ دیتی ہوں, آپ اس کو رومن میں لکھیں, کیسے بھی لکھ لیں, لیکن اس کے جو لیٹرز ہیں ان کو ضرور دیکھیں. وہ ہے, کون بتائے گا وہ جملہ؟
क्लास में कौन बताएगा? हक का खौफ भी अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अजब गम है। देखें, हक का खौफ अजब गम है, ठीक है। अब ये अजब जो है गम है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, अजीब नहीं बनाना, अजब गम है। और इसमें देखिए आपके सारे ये लेटर्स जो आ रहे हैं, हा, काफ, काफ और अलिफ और खा, वाव, फा, जितने भी आ रहे हैं ये 14 लेटर्स हैं, ठीक है। और ये 14 लेटर्स सारे के सारे कमरी लेटर हैं। कमरी लेटर वो होता है जिसके पीछे अलिफ लाम लगाएं तो अलिफ लाम जो है, जैसे भी मैंने अलिफ लाम लगाया है ना, तो ये क्या बन गया? अल हक बन गया ना। तो हा जो लेटर है ये आपका कमरी लेटर है। क्यों कमरी लेटर है? क्योंकि लाम को पढ़ा जा रहा है, लाम को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, अल हक, लाम पढ़ा जा रहा है, तो ये हा जो है ये फिर कमरी लेटर होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल कमर होता है, अल कमर में हम काफ को पढ़ रहे हैं, काफ कौन सा लेटर है अल कमर में? कमरी है, क्योंकि हम लाम को पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ा जा रहा है, अल कमर, ठीक है ना। तो जहां पे लाम को पढ़ा जाएगा वो आगे कमरी लेटर होगा, लाम के बाद वाला लेटर, ठीक है। और जहां पे लाम को नहीं पढ़ा जाएगा वो आपका शमसी लेटर होगा। मैं अभी आपको मिसालें और भी देती हूँ। तो आप पहले ये जुमला लिख लें, हक का खौफ अजब गम है, जो सिस्टर सवाल कर रही थी ना। जी 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 लिख लेना, हक का खौफ अजब गम है, बस इतना ही लिखना। ये गैन है, ठीक है। तो इसमें ये गैन है और ये मीम है, तो ये 14 लेटर्स हैं, ये सारे के सारे कमरी लेटर्स हैं। पीछे 14 जो और बच गए हैं वो शमसी है, उनमें लाम नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है ना, अल मुदरिसु में लाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो मीम कौन सा लेटर होगा लाम पढ़ा जा रहा है? तो शमसी। शमसी तो नहीं होगा, लाम पढ़ा जाए तो वो कमरी होता है। कमर में भी पढ़ा जाता है ना लाम, अल कमर, तो वो कमरी लेटर है, काफ जो है। यहाँ पे देखें ये काफ आ रहा है, ये कमरी लेटर है। तो जब लाम पढ़ा जाएगा तो उसके आफ्टर लाम के बाद जो लेटर आएगा वो कमरी लेटर होगा। तो यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है। इसी तरह अल किताबु है, अल किताब में मुझे बताएं लाम पढ़ा जा रहा है? जी पढ़ा जा रहा है। नहीं, वो जो जवाब दें जिनका क्वेश्चन है ना, तो फिर उनको समझ नहीं आएगी। अल किताबु, अभी लाम पढ़ा जा रहा है, अल किताबु, तो काफ कौन सा लेटर होगा? कमरी। तो कमरी लेटर, तो यहाँ कमरी लेटर्स में का आ रहा है ना, काफ आ रहा है ना। यहाँ पे देखें तो ये वाला काफ तो आ रहा है, उसके साथ अलिफ जुड़ा हो, तो ये वाला लेटर, तो अल किताब। इसी तरह आप यहाँ पे देखें अल हकीबा, अल हकीबा में लाम पढ़ा जा रहा है जी। तो अब इसमें कमरी लेटर कौन सा होगा? हाँ, तो हाँ इसमें है, हक का खौफ है, आ गया ना जी, तो ये कमरी लेटर हो गया। अब शम्स, इनमें शमसी लेटर कोई भी नहीं आ रहा। शमसी लेटर जैसे अशम्स है, देखें अशम्स, अशम्स में आप देखें लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। अशम्स, लाम नहीं पढ़ा जा रहा। तो अब शीन कौन सा लेटर है? वो शमसी लेटर, ठीक है। इसी तरह आप मुझे कोई और मिसाल दें, अशम जैसे इसकी मिसाल दें, अल जिसमें लाम ना पढ़ा जाए, कोई भी मिसाल दे सकता है। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। अद्दीकु। अद्दीकु, अद्दीकु अपनी सिस्टर आप बताएं जिनका सवाल था, लाम पढ़ा जा रहा है कि नहीं? नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं, तो अब ये शमसी लेटर होगा, ठीक है। लाम के बाद जो लेटर है ये शमसी, और इसकी निशानी ये है कि इसके ऊपर तशदीद आती है, इसलिए अलिफ को लाम को स्किप कर देते हैं, अद्दीकु पढ़ेंगे। और तशदीद के नीचे ये कसरा हो, ये तशदीद के नीचे हो तो वो कसरा होता है, तशदीद के ऊपर हो तो वो फतह होती है, सही है। तो अद्दीकु पढ़ेंगे। तो आप पीछे का रिवाइज करते रहें, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे छोटा सा वॉइस नोट मुझे छोड़ के पूछ सकती है कि मुझे समझा दें यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी आपका सवाल मैंने यहाँ पे ले लिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? शमसी कमरी के? जी बोलिए।
मैडम लाइक मेरे पिछले 3-4 क्लासेस मिस हो गए, अभी उसके नोट्स बनाने के लिए अभी क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ तो मुझे टाइम अभी नहीं मिला उतना, मतलब उसके नोट्स बनाने का। तो मेरा ये डाउट है कि आपके जो आप लिंक्स जो यूट्यूब लिंक्स है वो पढ़ने पर काफी हो जाएगा या इसके बाद में बुक भी रेफर करना चाहिए? बुक कौन सी बुक? आपने जो दी है मदीना बुक। हाँ, तो बुक को भी बुक के साथ साथ ही पढ़ा करें ना। जब आप नोट्स मेरे सुनती है ना, वीडियो देखती है ना, तो उसमें आप बुक को साथ साथ खोल के रखा करें ना, तभी होगा ना। एक तो बुक वो होती है जैसे अभी ये शेयर हो रही है ना जी, तो आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं दे दूंगी आपको, आप मुझे मैसेज कीजिएगा प्राइवेट में। जी। आपका नाम क्या है? आयशा सिद्दीकी मैडम। अच्छा, सिद्दीकी है, तो शायद आप मेरे पास ऐड भी हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बुक दे दूंगी, जितनी भी रिलेटिव बुक्स हैं वो मैं दे दूंगी आपको, ठीक है? तो वो आप उनको भी थोड़ा थोड़ा देख, जब भी थोड़ा टाइम मिले, ये ना देखा करें कि ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, थोड़ा सा भी। जब मैं पढ़ती थी तो हम ड्राइविंग करते हुए पढ़ते थे, हमारी बुक सामने होती थी, थोड़ा सा लाइट आ गई, थोड़ा सा खोल के पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया, तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। टाइम तो मिलना बहुत मुश्किल है, निकालना पड़ता है। सही है सिस्टर, तो निकालेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और घबराए, सभी लेसन इंटर रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल एक अगर मिस हो गया तो फिर आगे का समझ नहीं आ रहा। नहीं आएगा कोई। अब मैं तो बताती रहती हूँ, मैं जैसे अभी आपने यहाँ पे सवाल कर लिया, आप सबको दोबारा जिसका भी मिस हुआ हुआ उन्होंने सुन लिया, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको भी आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। आप पढ़ने वाले बने, ठीक है? इंशाल्लाह कोई नहीं, अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं इस काम में, और वो सब काम होते जाते हैं। बस क्विट नहीं करना, हारना नहीं, ये नहीं कहना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट, इट्स हार्ड। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आसान है, तुम कर सकते हो। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने हमारी ताकत से बाहर तो रखी नहीं, है ना? हमारी ताकत के अंदर ही अंदर होती है वो चीज, तो हम कर सकते होते हैं, तो फिर हम क्यों अपने छोड़ देना? अगर हम दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, दुनिया की डिग्रियों के लिए हम रात दिन एक कर सकते, तो अल्लाह की किताब के लिए क्यों नहीं कर सकते? सही है ना? तो ये सारे जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, मोहम्मद की किताब, ये रसूलुल्लाह ही सारा कुरान में आता है, किताबुल्लाह ही, हर चीज किताब में आती है अल्लाह की। तो जब यहाँ पढ़ लेंगे तो वहां भी आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर, ठीक है? सही है ना? तो कुरान मजीद को पढ़ते भी थोड़ा गौर किया करें, अच्छा कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, क्या कौन कौन से आ रहे हैं, हाजा हमने पढ़ा है, हाजा का क्या मीनिंग होता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अभी कौन करेगा ये क्वेश्चन आंसर दोबारा आके? मैं कर लेती हूँ। शाजिया आप कर लें, शाजिया मुराद आ जाए जी। Answer the following questions. अजीब अन असइलतल आतियती। अजीब जवाब हमारे उर्दू में होता है ना, जवाब दीजिए अनिल असन, तो वही वर्ड वही है उर्दू वाले, हम तो बहुत लकी हैं। असल जो है सवाल के लिए है, अजीब जवाब के लिए, सवाल के लिए। और आतिया मीन्स, आतिया का मतलब आने वाले, है ना? अच्छा, आती, वो मेरे घर में आती रहती है ना, बोलते हैं ना आती रहती है। जी। तो आतिया भी उर्दू में यूज होता है, आती, है ना? तो ये सारे लफ्ज उर्दू के ही हैं। अच्छा, अब पढ़िए सवाल। ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? किताबु मुहम्मदिन तहतल मक्तबी। तहतल मक्तबी, कुछ भी बोले सही होना चाहिए, ठीक है? किताब या अलल मक्तबी या तहतल मक्तबी, अलल मक्तबी भी कह सकते हैं, तहतल मक्तबी भी कह सकते हैं। किताब, कोशिश करें जो इसमें दिया हुआ है ना वही कहें। यहाँ पर मोहम्मद की किताब कहाँ है, तो वो है तहतल मक्तबी, है ना? तो अब आप मोहम्मद किताबु मोहम्मद की बजाय हुआ भी लगा सकते हैं। जी, हुआ भी, ये किताबु मोहम्मद की जगह ही हुआ लगा हुआ है ना यहाँ पर। दोबारा किताबु मोहम्मद दिन नहीं, जगह बचा ली ना, जगह बचा ली है, जमीर लगा के जगह बचा ली। इट भी कर सकते हैं हुआ लगाकर। हाँ, इट इज हुआ तहतल मक्तबी, इट इज अंडर द टेबल, हुना का हाँ वहां पर है, टेबल के नीचे है। तो अब दूसरी का है, दूसरी अमार की पूछेंगे, तो अमार की आपने क्या बतानी है? हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी।
मैम इसको अलल मक्तबी बोलेंगे या हुआ अला मक्तबी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अला आ रहा है तो उसकी वजह से हम पेश नहीं लगाएंगे, जेर लगाएंगे। ये समझ आ गया? जी हाँ, तो ये हमने जेर लगा दिया। अला की हुरूफ जर की वजह से नेक्स्ट वर्ड जो होगा जैसे मक्तब है उसके नीचे जेर आया, बस ये आपको समझ आ गया ना? ठीक है। जी अब आपने क्या करना है कि अल्लाह के बाद जब वर्ड आएगा ना उसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना। अगर देखें, पता है आप हुवा अलल मक्तबी, अगर सिर्फ ये होता ना तो आप क्या करती, हुवा अलल मक्तबी, इसके ऊपर अलिफ लाम लगा देती। ठीक है, हुवा अलल मक्तबी, वो टेबल पर है। लेकिन चूंकि आगे मुदरिस भी आ रहा है ना, आगे मुदरिस भी अल मुदरिस भी आ रहा है, तो फिर आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, तो आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगी। अभी आप इतने ही समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है ना? ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मैम जी। हाँ, कंफ्यूजन। अब ये याद रखें, इतना ही अभी आप याद रखें कि जब आगे कोई और वर्ड आ रहा होगा ना तो फिर आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाएंगी। सही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपने आगे मुदरिस के आगे कोई वर्ड नहीं आ रहा ना, तो कलमू के बाद आपने अल मुदरिस पे लगा लिया, अलिफ लाम लगा लिया। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और वर्ड आ रहा होता तो फिर मुदरिस के ऊपर भी आप ना लगाती। ठीक है ना? अच्छा, मतलब किसी एक में लगता है फिर। हाँ, एक सेंटेंस बनाने में किसी एक में लगेगा अलिफ लाम। हाँ, बस वो कहाँ लगेगा? लास्ट वाले में लगेगा, बीच वाले जितने भी आएंगे ना उनमें नहीं लगेगा। यू गॉट इट मैम? इसमें देखिए ऐना किताब अम्मारिन में मैं या तो इसके दो आंसर्स हैं कि हुआ अलल मक्तबी या हुआ अला मक्तबिल मुदर्रसी। हाँ, अगर आप मुदर्रिस के टेबल के नीचे बताना चाह रही हैं तो फिर आप मुदर्रिस पे अलिफ लाम लगाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर जो एंड वाला वर्ड होगा, बस ये याद रखें कि जो एंड वाला होगा उस पे अलिफ लाम लगेगा, बाकी जो जितने भी बीच में आएंगे ना उन पे नहीं लगेगा। ठीक है, बीच में चाहे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, आप उन पे नहीं लगाएंगी। जो आखिरी होगा उसी पे जाके आप अलिफ लाम लगाएंगी। जी, गॉट इट? नो, ओके, ठीक है। हाँ, तो बस ये याद रख लें। नंबर 3 है आइना अकीबतुल मुदर्रिस। अम्मार की किताब उस्ताद का बैग कहाँ है? हाँ, अच्छा, थर्ड वाला मैं हूँ। हाँ, ठीक है। उस्ताद का बैग कहाँ है? या तहतल मक्तबी। मक्तबी, अब देखिए जी, वो टेबल के नीचे। अच्छा, अगर आप इतना ही जवाब दे रही है ना तहतल मक्तबी, तो आप क्या करेंगी? अब ये आखिरी है ना आपका वर्ड, तो उसके ऊपर आप अलिफ लाम लगाएंगी। ठीक है, अगर ये आखिरी वर्ड है तो इसके ऊपर आपने अलिफ लाम लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप इसको आखिरी वर्ड नहीं बना रही, आगे अल मुदर्रिस भी ला रही हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? तहत मक्तबिल मुदर्रसी। बिल्कुल, अलिफ लाम नहीं लाएंगी अभी आप यहाँ पे, क्योंकि अलिफ लाम जाके एंड में लेकर आएंगे। बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में। हाँ, तो अब आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकती है ना, हिया तहत मक्तबिल मुदर्रिसी। ठीक है ना? तो आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकती हैं, टीचर के टेबल के नीचे है। और वो जो बैग की बात हो रही है ना, तो वो आप देख लें यहाँ पे आपका इसी तरह आया हुआ है, हिया तहतल मक्तबी। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अब आपने इसको लास्ट वर्ड बनाया तो आप लेकिन अगर आप मुदरिस को लास्ट वर्ड बनाती हैं यहाँ पे, तो अल मुदरिस के ऊपर आप लगाएंगी और तो मक्तब में नहीं लगाएंगी। फिर ये बात उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी, और ये बहुत मुश्किल बात थी जो आप लोगों ने इतनी आसानी से समझ ली। तो लास्ट वाला जो होगा उसमें लगाने, अगर एक ही वर्ड आ रहा है ना, इसके बाद मुदाफ के बाद एक ही वर्ड आ रहा है तो उस पर आपने लगाना है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई वर्ड आ रहा है तो फिर इसके ऊपर आपने नहीं लगाना। यहाँ सारी मिसालें आपको दी हुई हैं। देखें यहाँ पे आपका ये अला के बाद अला मक्तब, अगर ये होता ना अलल मक्तबी, खत्म हो जाता है यहाँ पे तो अलिफ लाम लग जाता, अलल मक्तबी हो जाता। लेकिन चूंकि मुदरिस भी आ रहा है तो अब आपने इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाया, मुदरिस पे लगाया जाके। तो अगर एक ही वर्ड आ रहा है तब तो आप उसको अलिफ लाम लगा लें, लेकिन अगर नहीं उसके बाद दूसरा भी आ रहा है तो उसको छोड़ दें, उस पे ना लगाएं। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगी ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी आप लोगों की। अभी प्रैक्टिस हुई नहीं ना हमारी, अभी तो हम सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं पढ़ना।
अच्छा, अभी कोई और सिस्टर आएंगी जो करेंगी क्वेश्चन आंसर? मैं करूँ? कौसर। कौसर आप आ जाइए। कौसर फातिमा? कौसर घड़ियाली। अच्छा आ जाइए, हाँ आप आ जाइए। चलिए इसको यहाँ से भी पढ़ लें। अजीब अजीब अनिल अस्इलती अस्इलतिल आतियती। आती उर्दू में बोलते हैं, उसी को याद रखें, ठीक है। आती यती या है ये, आती यती जी, आतियती सही है। ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? हुआ तहतिल मकतबी हुनाका। ठीक है, हुआ तहतिल मकतबी हुनाका, ठीक है। और आगे वहाँ मेज के नीचे है। ऐना किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है? हुआ अला मकतबिल मुदर्रसी, ठीक है, वो उस्ताद के मेज के ऊपर है। हाँ, मकतबिल मुदर्रिसी, अला मकतबिल मुदर्रिसी, तो अल मुदर्रिस पहले फलाम लगेगा, मकतब पे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे नंबर 3। ऐना हकीबतुल मुदर्रसी, उस्ताद का बैग कहाँ है? या तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। मेज के नीचे है, तहतल मकतबी। और अगर तहतल मकतबी अलिफ लाम लगाएंगे मकतब के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आगे मुदर्रिस भी लगाना है, टीचर के टेबल के नीचे, तो फिर हम मकतब लिखेंगे, अल मकतब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लेना है। और बाकी ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। इस एक्सरसाइज में क्या है, मैंने ये करवा दिया आपको। इसमें आपने इनको जोड़ के लिखना है। तो फिर जब जोड़ के लिखेंगे तो पहले वाला जो मुदाफ होगा, जो पहला वाला वर्ड होगा, उसके ऊपर तनवीन नहीं डालेंगे, अलिफ लाम भी नहीं डालेंगे। कलमु हामिदिन बैतु अब्बासिन, ये एक्सरसाइज तो इस तरह से होगी। और इसमें 2 ज़ेर आएंगे, क्योंकि तनवीन लगी है ना, तो नीचे 2 ज़ेर एंड पे आएंगे। और यहाँ पर आपका अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रहा है यहाँ पे, तो 1 ज़ेर ही आएगी। बाकी कुछ भी नहीं करना, जोड़ना ही है, मकतबुल मुदर्रिसी, ठीक है। मिफ्ताहुल बैती। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आपका होमवर्क है, मैंने दिया हुआ है, इसकी पिक्चर भी आपके ग्रुप में डाली हुई है। तो इसको कंप्लीट कर लें नेक्स्ट क्लास तक, जिसने भी नहीं किया वो कर ले। तो मैं आपको बता देती, ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है, ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है, ये वाली भी, नंबर 3 भी, और ये नंबर 2 भी करनी है, और क्वेश्चन आंसर नंबर 1 भी करनी है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 ये वाली, और फिल इन द ब्लैंक्स। और नंबर 3 जो है, इसके ऊपर आपने बाबुल मदरसती। अब देखें यहाँ पे ना, ये आप देखिए मिडल वाला जो है ना, उसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया और यहाँ भी नहीं लगाया। तो अगर आगे कोई लेटर आ रहा है तो मिडल वाले को आपने अलिफ लाम नहीं देना। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते ये लेसन खत्म करते हुए ना, तो जो संडे के लोग हैं वो वेडनेसडे को भी आ सकते हैं, अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आके अपनी, ठीक है। तो वेडनेसडे को भी आप लोग संडे वाले दिन आ सकते हैं, संडे वाले और वेडनेसडे वाले जो हैं वो संडे को भी आ सकते हैं। दोनों सेम लेसन होते हैं, दोनों सेम जो हैं वो टॉपिक्स होते हैं, और दोनों सेम जो हैं उर्दू की क्लासेस हैं, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग आके तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे, और ये वेडनेसडे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे आगे से। तो तब तक पिछला होमवर्क सब खत्म करके अपनी ग्रुप इंचार्ज को भेज दें, और इंशाल्लाह ताला जो लोग नहीं पढ़ सके इंशाल्लाह मैं उनको मौका दूंगी, वेडनेसडे को वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, ओके। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह मौलवी। वही नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वेडनेसडे को आप लोग आइएगा, फिर सबको पढ़ने का मौका दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वही